उठो बहनों, हमारा जो रोजाना का काम है वो काम करने का वक्त अब आ गया है। जाओ जाओ और उसे मजबूती से पकड़कर लेकर आओ। महजबीन, दिलनशीन, जाओ। अच्छा बहन नाज़नीन, हम अभी पकड़ कर लाते हैं। चल हमारे साथ, तेरा वक्त हो गया है। चल, नाज़नीन तेरा इंतजार कर रही है। चल, नहीं तो ये भाला तेरे दिल के आर पार हो जाएगा। कमबख्त। इंतजार करूं? कब आएगा तू? दगा दिया है तूने मुझे। तेरे पिछड़ने का गम अब तक मुझे खाए जा रहा है। तेरे इंतजार में मेरी आंखें पथरा गई है। मरना चाहती हूँ, मर नहीं सकती। जीना चाहती हूँ, जी नहीं सकती। कब आएगा तू? मेरे बेवफा महबूब, कब आएगा तू? 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 कब आएगा? ये राज क्या है? इन सब बातों का क्या मतलब है? पहले उस कुतिया को नाज़नीन ने मारा, फिर नाज़नीन उस कुतिया से गले मिलकर रोई और फिर उसके आंसू अपने दामन से साफ किए और फिर उसे प्यार किया और फिर दिलनशीन को पागलपन का दौरा पड़ा। जोशे जुनून और वहशत में उसने अपने कपड़े फाड़ डाले। दिलनशीन के गोरे जिस्म पर काले दाग, मार खाने के जख्म है। आखिर ये सब क्या है? क्या राज है? तुम लोग तो जानते होगे। खुदा की कसम हमें कुछ नहीं पता है। जितना तुम जानते हो बस हम भी उतना ही जानते हैं। हम भी तुम्हारी तरह रात गुजारने आए हैं।
یہ تینوں بہنیں نازنین، مہجبین، دل نشین کون ہیں؟ کیا ہے اس پراسرار حویلی کا راز؟ اور اس حویلی میں رہنے والی تینوں پراسرار عورتوں کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں، یہ وعدہ خلافی ہوگی۔ آپ سب نے ان کی شرطیں مان لی ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی ان بہنوں سے کچھ نہیں پوچھے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا، ورنہ سزا پائے گا۔ موت کی سزا؟ یہ سزا تو عمر قید سے اچھی ہے۔ کچھ سوال پوچھنے پر جو موت کی سزا کی بات ہوئی تھی، ہو سکتا ہے ان تینوں بہنوں نے یہ بات ہمیں صرف ڈرانے کے لیے کہہ دی ہو۔ لیکن تم ان عورتوں کی زندگی کے بھید کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ میں ان کی کوئی مدد کر سکوں۔ مجھے تو یہ تینوں عورتیں بہت دکھی اور مظلوم نظر آتی ہیں۔ بڑا نیک خیال ہے، بڑے نیک انسان ہو تم ہی ان عورتوں سے یہ راز پوچھو۔ حضور، یہ کیا غلطی کر رہے ہیں آپ؟ شرط اور وعدے کے مطابق آپ کو ان عورتوں سے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، ورنہ جان جانے کا ڈر ہے۔ اور حضور، رات بھر خاموش رہیے، صبح میں ان سب کو دربار میں حضور کے سامنے حاضر کروں گا، پھر راز تو معلوم ہو ہی جائے گا۔ لیکن میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا، میں یہ راز ابھی جاننا چاہتا ہوں۔ حضور، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ان عورتوں سے کیا ہوا وعدہ اور شرط نہ توڑیں۔ اس قسم کی عورتوں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ نہیں، جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہم ان کے ہمدرد ہیں اور ان کے غم اور مصیبت میں شریک ہیں اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے اس ہمدردی کے جذبے کی قدر کریں گی اور ہمارے سوال پوچھنے پر وہ ہمیں قتل نہیں کریں گی۔ اے ہمدرد انسانیت، ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہم بھی تیرے اس نیک کام میں شامل ہو جائیں اور ان تینوں مہمان نواز عورتوں سے ان کی زندگی کے عجیب و غریب راز معلوم کریں۔ راز معلوم کرنا چاہتے ہو؟ وعدہ خلاف، بے ایمان، دغاباز مہمانوں، ہماری یہ شرط تھی کہ تم ہم سے کچھ نہیں پوچھو گے، چپ چاپ دیکھتے رہو گے، زبان نہیں کھولو گے، خاموش تماشائی بنے رہو گے۔ خاموش تماشائی بنے رہنا کسی شریف انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے محترم خاتون۔ جو کچھ بھی ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں اس میں تمہاری بھلائی ہے، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم تینوں بہنیں کسی کے ظلم کا شکار ہو تو ہم تمہیں اس سے آزاد کرائیں گے۔ اگر کسی کے جادو یا طلسمی جال میں پھنسی ہوئی ہو تو ہم اس جال کو کاٹ ڈالیں گے۔ ہاں، ہمیں بتاؤ، تم جیسی اعلیٰ تہذیب یافتہ بہنوں کا یہ پراسرار رہن سہن، دیواروں پر مردہ جانوروں کے منہ سے نکلتی ہوئی آوازیں، اور اس حویلی سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ کیا ہو؟ کیا راز ہے تمہارا؟ تمہارا اس کتیا کو بے رحمی سے پیٹنا، پھر اسے سینے سے لگا کر رونا، پیار کرنا، دل نشین کا کپڑے پھاڑ دینا اور اس کی پیٹھ اور سینے پر کالے داغ اور زخموں کا بھرا ہوا ہونا، یہ نظارہ کیا تھا؟ کیا راز تھا یہ؟ ہمارے سوالوں کا جواب دو میزبان نازنین۔ اے ہیرے موتیوں کے جوہری، تمہارے سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، موت۔ تم سب نافرمان مہمانوں کی موت۔ افسوس کہ ہم نے تم بے سہارا مسافروں کو سہارا دیا اور تم نے ہم سے دھوکہ کیا۔ ہم نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے ہمارے بھروسے کا خون کیا۔ ہم نے اپنے بلند اخلاق سے تمہیں نوازا، اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا، تمہیں عزت دی، اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی، اور اس جگہ پر بیٹھ کر تم ہماری ذاتی زندگی میں جھانکنے لگے۔ جس شرط پر تم لوگ یہاں ٹھہرے تھے اسے بھول گئے، وعدہ توڑ دیا تم سب نے، اپنی زبان بدل دی، شرط بھول گئے تم سب۔ بھولے نہیں، سب یاد ہے غریب پرور نازنین، تو نے ہمیں پناہ دی،
नान और खजूर का अर्घ दिया। मेहरबान खातून, हम तेरे एहसान मंद हैं। एहसान फरामोश, तुमने हमारी मेहरबान तबीयत का नाजायज फायदा उठाया है। अब तुम्हारा कत्ल जायज है। कत्ल ना कर, कत्ल ना कर, रहम कर, रहम। ऐ रहम दिल नाज़नीन, हमारी तौबा, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। नहीं, मुआफी मांगने और तौबा करने से तो अल्लाह भी गुनहगारों के गुनाह मुआफ कर देता है। और अल्लाह गवाह है, ऐ मुअज़्ज़ज़ खातून, कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमने जो कुछ भी पूछा है वो तुम्हारी और तुम्हारी अजीज बहनों की भलाई के लिए पूछा है। इसलिए जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें मुआफ कर देना। नहीं, तुम हमारे गुनहगार हो। ऐ नादान नाज़नीन, जिद न कर, सजा न दे। अपने राज हमसे न छिपा, हमें बता, वरना हम समझेंगे कि तेरे सीने में पत्थर, सर में गुरूर और जबान पर जहरीले सांपों का जहर है। तो इंसानियत को नहीं पहचानती, तो जालिम है, सितमगर है, तो इंसान नहीं जानवर है। खामोश, खामोश, खामोश गुस्ताख, गौहर शनास, खामोश। चिरगाम, चिरगाम, मेरे हुस्न का गुलाम जिन चिरगाम, हाजिर हो ए जल्लाद जिन चिरगाम, हाजिर हो। तेरा हुस्न का गुलाम जल्लाद जिन हाजिर है, हाजिर है। हुस्न की मालिका, हुक्म है, अपनी खूनी तलवार से इन पांचों वादा फरामोश मुसाफिरों की गर्दन काट डाल, कत्ल कर दे इन्हें। और सबसे पहले इस हीरे मोतियों के ताजिर गुस्ताख गौहर शनास की गर्दन काट दे, कत्ल कर दे इसे। तू जानती है तू किसको कत्ल कर रही है? ये बगदाद शहर के मालिक खलीफा हारून रशीद है। खलीफा हारून रशीद, बगदाद शहर के मालिक। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। कत्ल कर दे इसे। नहीं, पहले हमें कत्ल कर। ऐ मेहरबान जल्लाद, मेहरबानी करके पहले हमें कत्ल कर दे। हाँ, हमें पहले कत्ल कर दे, तेरा हम पर बड़ा एहसान होगा। ऐ रहमदिल जल्लाद। ऐ मेहरबान जल्लाद, मेहरबानी करके पहले हमें कत्ल कर दे। क्यों? मगर तुम क्यों पहले कत्ल होना चाहते हो कलंदरों? हमें मरने का बहुत शौक है, मौत से मिलने का शौक है। इसीलिए कफन पहनकर कलंदर के भेष में मौत की तलाश में निकले हैं हम। शुक्र है कि आज मौत खुद हमारे पास पहुंच गई है। मरने से पहले हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके हमें फौरन कत्ल कर दो, हमारी गर्दनें काट डालो। चुप बदतमीजों, इंतजार करो, जल्दी ना करो, सब्र करो दरिंदे जानवरों, सब्र करो। मरने से पहले तुम लोगों की आखिरी ख्वाहिश क्या है? मरने से पहले हम अपनी आप बीती अपनी जिंदगी की सच्चाई दुनिया को सुनाए, ताकि दुनिया हमारी जिंदगी की अजीबोगरीब हैरत अंगेज सच्चाइयों से सबक ले। कभी न भूलने वाले वाकयात और हादसात से भरी हम तीनों कलंदरों की जिंदगी की सच्चाइयों में एक बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है। हम खुद एक राज हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। इसलिए हम तुम्हारे कत्ल किए जाने का हुक्म देते हैं। अगर हमारी जिंदगी की कहानियां सुने बगैर तुमने हमें कत्ल कर दिया तो तुम तीनों बहनें और ये जल्लाद जिन भी हमारी तरह काने हो जाएंगे। नहीं, तुम तीनों बहनें
एक आंख वाली बहनें बन जाओगी और कानी हो जाने से तुम्हारा हुस्न और तुम्हारी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी। नहीं नहीं, अगर यकीन नहीं आता तो हमारी कहानियां सुने बगैर हमें कत्ल कर दो, फिर देखो तुम सबकी एक एक आंख गायब हो जाएगी और तुम कानी बन जाओगी। साथ में तुम्हारे हुस्न का गुलाम जल्लाद जिन, जो कि ताकतवर, तंदुरुस्त और खूबसूरत है, कान्हा बनने के बाद बदसूरत हो जाएगा। नहीं, मैं समझना नहीं चाहता। है मलिका हुस्न नाज़रीन, इन कलंदरों की बात मान ले। हाँ, मान ली मैंने इनकी बात। ऐ यक चश्म कलंदरों, खड़े हो जाओ। हम तुम्हारी कहानी सुनने के बाद ही तुम्हारा कत्ल करेंगे। लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुम तीनों एक साथ जुड़े हुए पैदा हुए थे? नहीं। क्या तुम तीनों भाई हो? नहीं, हम भाई नहीं हैं। हम आज ही पहली बार कब्रिस्तान में मिले हैं। तुम तीनों आज ही पहली बार मिले हो? हाँ कातिल मेजबान, आज ही हम तीनों पहली बार मिले हैं। हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ कलंदर होने की वजह से हम दोस्त बनकर मौत की तलाश में निकल पड़े हैं। हम तीनों बड़े बादशाहों के बेटे हैं। क्या तुम सब बाईं तरफ से काने पैदा हुए थे? नहीं, हम सबकी ये बाईं आंख अलग अलग मुल्क और शहरों में निकाली गई हैं या फोड़ दी गई हैं। यही आप बीती तो हम तीनों अलग अलग अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। तो पहले तुम ही अपनी कहानी सुनाओ। लेकिन एक शर्त है। क्या? हम तीनों कलंदरों की कहानियां सुनने के बाद हम सब पांचों को कत्ल करने से पहले हमें तुम अपनी सच्ची कहानी का वो राज जो कि इस जौहरी ने पूछा था, तुम हमें वो राज बताओगी। हाँ, राज बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। तुम सबको कत्ल करने से पहले बताऊंगी। लेकिन पहले तुम अपनी सच्ची कहानी सुनाओ। अब मैं तुम्हें अपनी सच्ची कहानी सुनाता हूँ कि मेरी ये आंख कैसे फूटी और मैं ये कफन पहनकर कलंदर क्यों बना। जनूबी समंदर के किनारे सबसे बड़ी सल्तनत जजीरा दानियाल के बादशाह बेदार वक्त का बेटा मैं शहजादा फिरोज बख्त हूँ। मेरे चचा जान की सल्तनत हमारी सल्तनत से 2 समंदर पार थी। मेरे चचा का बेटा, मेरा चचा जाद भाई अफ्फाक में और मुझ में बहुत गहरी दोस्ती थी। मैं हर महीने के आखिरी दिनों में उससे मिलने जरूर जाया करता था। एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका। जब मैं उसे मिलने उसके महल में गया तो मैंने देखा आदाब, गुलाम जाबाज। हुकुम हुजूर। क्या हमारे दोस्त शहजादा अफ्फाक शिकारगाह से आ गए हैं? हाँ हुजूर, आपके दोस्त शहजादा हुजूर अभी अभी शिकारगाह से आए हैं। वो इस वक्त कहाँ हैं? अपनी ख्वाबगाह में आराम फरमा रहे हैं। मगर गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ हुजूर। तुम यही कहना चाहते हो ना जाबाज कि इस वक्त उनके पास कोई नहीं।